इंकलाब जिंदाबाद। मारूफ समाजी कारकुन मेधा पाटेकर की सरपरस्ती में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस AICCTU ने सिंधनूर से बल्लारी तक 3 दिन की रैली निकाली और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपनी डिमांड्स के साथ मेमोरेंडम पेश किया। हुकूमत से इंसाफ की मांग के साथ साथ इन मजदूरों के हुकूक के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सालार डिजिटल के नाजरीन को बताते चलें कि बल्लारी में तकरीबन 40 साल से माइनिंग का काम चल रहा था कि अचानक 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पर माइनिंग कंपनियों पर ताले लग जाते हैं क्योंकि ये गैर कानूनी था। नतीजतन 25,000 मजदूर बेरोज़गार हो गए। AICCTU की लीगल एडवाइज़र एडवोकेट मैत्री कृष्णन ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि माइनिंग कंपनियों से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए जुर्माना जमा किए जाने के बाद माइनिंग शुरू तो कर दी गई, लेकिन उन 25,000 मुकामी मज़दूरों को काम पर वापस नहीं लिया गया और ना ही हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई कॉम्पनसेशन या रिहैबिलिटेशन दिया जा रहा है। मुलाहिज़ा करें सालार डिजिटल की खुसूसी रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ R&R ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒತ್ತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದು ಮಾನ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು। ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು KMRC ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರಲಿ ಚಿರತೆ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅದರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ದುಡ್ದಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ದುಡ್ದೀವಿ। ಎಷ್ಟು ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷ ದುಡ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ। ದುಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಮತ್ತು ಈ ಸತೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಬರಕತ್ತೀವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ। ಇದು 30-40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು HRJಗ ಮಾಡಕತ್ತಿ, ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬದುಕ್ಯಾರ ಯಾರು ಸತ್ತಾರಂತ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರು ಬೇಸು। 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ। ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು। ಹಾಂ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ದುಡಿಮಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ। ಮತ್ತು ನರ್ಸಾಪುರ ಬರ್ತಾರೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 300-350 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ। ಊಟದ ತೊಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓದಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಕೆಲಸದ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ತೈತೆ। ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಂತ ದುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ HRJಾಗ ದುಡ್ದಿರೋ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಡುವಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ। ನಾವು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆವಾಗಲಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು। ಆವಾಗಲಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ LMC ಸಾವುಕಾರ। ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮುಯ್ಯ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ। ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ತೂಗಿವಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ। ಒಂದು ಅರೇರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನೇನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ। ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ। ನಮಗೇನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ನ ಹೋರಾಡಕತ್ತೀವಿ। ಇನ್ನು ಲೇಬರ್ ಕೋಟಿ ತಕ 2 ಹಗಲು 1 ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿವಿ ಲೇಬರ್ ಕೋಟಿನ ತಕ। ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವಿ, ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವಿ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅದು ಬೈಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವಿ।
ಇಲ್ಲಿ ನರಸಸ್ವಾಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಳದವಣಿ ತಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೀವ್ರಿ. ನಮಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನು ಏಟೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕ್ರಿ. ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಸರ್. उस परिस्थिति में more than 25,000 वर्कर्स काम किए थे. We all know लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े रिपोर्ट, उसमें उन्होंने देखा है कि कोई भी डिपार्टमेंट तब काम नहीं किया. लेबर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, कोई भी काम नहीं किया और वहां पे इलीगल माइनिंग हो रहा था. उस इलीगल माइनिंग में एक एस्पेक्ट जो है किसी ने उसके बारे में नहीं बात किया, वो है वहां पे जो मजदूर थे उनके बारे में. अगर हम जब माइनिंग क्लोज हुआ उसके पहले देखे तो उनका जो परिस्थिति था बहुत ही सीरियस था. उनका मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा था, वो ओवर टाइम कर रहे थे, उनका कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रहा था. अगर कोई भी उसके बारे में बात किया, कोई भी राइट्स पूछा तो उनको काम से निकाला गया. थ्रेट्स था, लाइफ थ्रेट्स था उनके ऊपर. वो अगर यूनियन बनाने चले तो उनके ऊपर लाइफ थ्रेट्स था. उनको 2011 में जब माइंस क्लोज हुआ तो तब वो सारे लोग 25,000 वर्कर्स, वो सारे वर्कर्स उनका काम उनको काम से निकाला गया था. उनका कोई भी तरह से कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, कोई भी तरह से रिहेबिलिटेशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उनको. एक दिन सडनली उनको काम से निकाला गया. पर अभी आज 2022 में है, 11 इयर्स से ज्यादा हुआ है, अब तक उनको कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, कोई भी रिहेबिलिटेशन नहीं मिला. अभी माइंस भी शुरू हुआ है, माइनिंग भी फिर से शुरू हुई है, पर ये जो वर्कर्स पहले काम करते थे उनको नहीं लिया गया. अभी वो ये शैम कॉन्ट्रैक्ट के तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेकर आए हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको उनकी तरफ से वो काम करवा रहे हैं, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स को वो राइट्स पूछ नहीं सकते. हम पूछ रहे हैं कि जो माइंस शुरू हुआ है उनमें जो वर्कर्स पहले काम कर रहे थे उनको क्यों ये काम नहीं दिया गया है. सरकार अभी तक वो क्यों स्टेप नहीं लिया है. और एक बात है, अभी जो इलीगल माइनिंग हुआ, इलीगल माइनिंग से वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अप टू 20,000 करोड़ पेनल्टी लिया है. वो 20,000 करोड़, हम बोल रहे हैं कि वो 20,000 करोड़ जो है वो वर्कर्स के हार्ड वर्क से बनाया हुआ काम है. उनका 2011 में जब उनको निकाली गई तो उनके लिए कुछ भी नहीं दिया. तो 20,000 करोड़ में एक स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाना है. वो वर्कर्स के लिए स्पेशल रिहेबिलिटेशन बनाकर, स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाकर उनको कॉम्पेंसेशन और रिहेबिलिटेशन देना है. अभी अक्टूबर 11 से अक्टूबर 14 अभी अक्टूबर 11 से अक्टूबर 13 तक एक पदयात्रा चली. 3 दिन की पदयात्रा माइन वर्कर्स ने किया है. संडूर से बेल्लारी तक 70 किलोमीटर्स वो चलकर आए. 70 किलोमीटर्स थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स चलकर आए संडूर से बेल्लारी तक. और बेल्लारी में there was a big protest that took place outside the office of the deputy commissioner. The main demands है कि एक उनको जो माइंस शुरू हुआ है उनको वापस वहां पे काम देना है. 2011 से अभी तक जो माइंस क्लोज हुआ है उनको काम से निकाला गया, इसके लिए परिहार देना है, कॉम्पेंसेशन देना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू करना है. और जो वर्कर 60 इयर्स के अबव है उनको पेंशन देना है, क्योंकि अब उनको वो काम नहीं कर सकते.
एक हेल्थ कार्ड बनाना है, सब वर्कर्स को फ्री हेल्थ सर्विसेज देना है। और इसमें वर्कर्स में 25,000 वर्कर्स में ज्यादातर महिलाएं हैं। अभी वर्कर्स को कोई भी काम नहीं है, काम है तो एज एग्रीकल्चरल वर्कर्स वो 100 रुपीज पर डे पर जी रहे। कोई भी जी सकता है ये 100 रुपीज पर डे पे? गवर्नमेंट को तक इमीडिएटली एक स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज करना है वर्कर्स के लिए। जो माइन वर्कर्स 2011 में उनका काम हो गया, उनको काम से निकाला गया, उनके लिए रिहेबिलिटेशन कॉम्पेंसेशन कॉम्प्रिहेंसिवली देखकर उनको करने का वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 12 इयर्स में बेल्लारी जिला गनी कार्मिक संघ जो है, माइन वर्कर्स, वो सारे अथॉरिटीज को अप्रोच किए, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू डिप्यूटी कमिश्नर टू ग्राम पंचायत, सारे अथॉरिटीज को अप्रोच किया है। अभी ये जो 20,000 करोड़ आई है गवर्नमेंट को, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए KMERC वो जो कॉर्पोरेशन बनाया गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उनको भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। और इनफैक्ट उनके मेमोरेंडम के ऊपर KMERC ने डिप्यूटी कमिश्नर को भी लिखी है कि डिप्यूटी कमिश्नर को एक पैकेज रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाना है वर्कर्स के लिए। और वो भी पत्र KMERC ने डिप्यूटी कमिश्नर के लिए भी लिखी है। डिप्यूटी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया है और उसमें क्लियरली है कि जो वर्कर्स के डिमांड्स हैं, मेनली एक स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाना है, रीएम्प्लॉयमेंट देना है, उसका वो मेन डिमांड उस मेमोरेंडम में है। You say that the government is standing up for the people of Karnataka. Then why are you not giving employment to the people of Karnataka? And when the mines have started, instead of giving work to the people of Karnataka, why are you giving work? Why are you ignoring them? Why are you not seeing the plight of the workers? So it is not just about the government speaks a lot about what they're doing for the state. But today, what are they doing for the people of the state? That is the real question. There is a case pending in the Supreme Court कि जो वर्कर्स को निकाला गया है उनको इमीडिएटली रीएम्प्लॉयमेंट भी करना है और उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन पैकेज भी करना है। तो जो मेमोरेंडम भी दिए गए हैं तो उसमें भी मेन है एक स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाना है वर्कर्स के लिए, उनके चिल्ड्रन के लिए, उनकी चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, वर्कर्स के कॉम्पनसेशन के लिए, रीएम्प्लॉयमेंट के लिए। और वो अभी डिप्यूटी कमिश्नर को भी एक मेमोरेंडम दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस पेंडिंग है। सबको जिंदाबाद। और हमारे नर्मदा आंदोलन से यहाँ हमने तुमको भेजा है लिप्टन जैसारी हो जो अभी वकील क्या हमारे जज भी है और बेटे ही बहन, तो इनका भी मैं छोटा सा आपके संगठन की तरफ से उनका भी सम्मान करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो समय मिलता नहीं है और कहीं तो इनको ये साथ देना चाहती हूँ। ये नर्मदा घाटी में बनती है और मैत्री बहन ये नर्मदा घाटी के स्थानिक नेतृत्व होता है, जैसे यहाँ लोग भी है, तो ऐसे नेतृत्व के सबकी मुलाकातों की ये नई किताब है। तो नर्मदा से बेल्लारी तक की लड़ाई एक है, नर्मदा से बेल्लारी तक की लड़ाई साथियों, मुझे याद आती है कि जब मैं पहले बेल्लारी में आई और वो लड़की कदम जो बाद में माफिया साबित हुई, उनकी कोशिश थी कि यहाँ एक एयरपोर्ट बनाना। और मल्लिकार्जुन भाई और किसान संगठन के साथ आज भी मैंने जब हरा रंग का ये पहना हुआ देखा तो मुझे वही याद आया। उस समय नरेंद्र स्वामी जी का एक बड़ा संगठन जिसमें हर बार हम आते थे